Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about multi-currency in Tally Prime. So before moving ahead with the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into different softwares, that is sales, services, solutions, implementations and development. We also deal in Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now just welcome to the speakers. The presentation will be conducted by Ms. Priyanka. So Priyanka, are you here? Yes, ma'am. And the live demonstration will be done by Mr. Aniket. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, Angar, I am available. Thank you. Okay. So I request Priyanka to start the session. Yes, ma'am. Hello, good evening all. This is Priyanka representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Welcome back to the today's webinar cum training session. Next slide, please. Here is the whole family of RSPL team. So let's start with the another important features of Tally Prime, that is multi-currency feature. So let's see about multi-currency. Next slide, please. Business operations could be expand to a great extent with time. टाइम के साथ एवरी कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन भी एक्सपांड होता है, तो द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मस्ट बी केपेबल टू हैंडल ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज और फर्दर जो भी नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर रहे, सच एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री. In a next, we will see how multi-currency supports several transactions. Several organizations have transaction in more than one currency, which means यह ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं होम करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी में. जब हम कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होम करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में भी चेंज होता है, जिसे हमें उसे भी रिकॉर्ड करना होता है. समटाइम देयर कुड बी अ सिचुएशन व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, जिसे हम इजीली टैली में मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी करेंसी फीचर्स. So moving to the next topic, that is forex gain and loss. इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज में भी फ्लक्चुएट होता है. जब आप कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज रेट ऑफ एक्सचेंज में प्रोवाइड करते हैं एंड पेमेंट फॉर द सेम आपको डिफरेंट डेट या टाइम पर मिलता है, इन सच केस द रेट ऑफ एक्सचेंज में नॉट बी द सेम एट पॉइंट ऑफ टाइम. So your business must be experience forex gain or loss due to rate of exchange in fluctuation. So these are some important information about foreign exchange. Now it's over to you, Anike. Thank you so much. Thank you, Priyanka ma'am. That was nice presentation from your side. Hello everyone. My name is Aniket Chavan, presenting from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So आज हम टैली में मल्टी करेंसी अकाउंटिंग हम टैली में कैसे लाइव मेंटेन कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं. So I want to share my screen firstly. So my screen is visible, ma'am? Yes, it's visible. Yes, thank you, ma'am. So टैली में जैसे हम फॉरेन कंट्री में जो भी गुड्स एक्सपेंस सेल या फिर परचेस करते हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसका हम टैली में कैसे अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, उन करेंसी में हम कैसे रेट एक्सचेंज करके हमारा बैलेंस शीट मैच कर सकते हैं, उसका हम प्रैक्टिकली एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके यहाँ पे देखेंगे और उसका सेटअप हम कैसे कर सकते हैं टैली में, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो कंपनी का जो सिंबल है वो हमें यहाँ पे होना ज़रूरी है. कंपनी अल्टर में यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल जो भी कंपनी का सिंबल रहेगा वो हमें यहाँ पे डालना है. जैसे इंडिया की कंपनी है तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का सिंबल करेंसी यहाँ पे ऐड होना बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है वैसे. सेकंड, जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज में तो उस पार्टी का उस फॉरेन पार्टी का हमें यहाँ पे सिंबल करेंसी सिंबल बनाना क्रिएट करना पड़ता है, मास्टर क्रिएट करना पड़ता है.
सो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट में जाते हैं। यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिया गया है, करेंसी में हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ करेंसी यहाँ पे बनाई है, जैसे यूरो और पाउंड का यहाँ पे करेंसी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जापानीज यान, एंड ये यूरो कंट्री, यहाँ पे यूरो का एक करेंसी का मैंने क्रिएट किया है। एक करेंसी मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे डॉलर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। डॉलर का यहाँ पे सिंबल डाल देना, सबसे पहले सिंबल का ऑप्शन दिया है। इसका फॉर्मल नेम हम यहाँ पे डालना है, हम किस नेम से इसको डिफाइन करना चाहते हैं, डॉलर। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट 2 यहाँ पे रख देना। एंड ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसको हमें यस रखना जरूरी है, ताकि कोई भी अमाउंट के सामने हमें वो अमाउंट कौन से करेंसी में है वो हमें यहाँ पे दिख जाता है, उसका सिंबल यहाँ पे दिख जाता है, सफिक्स सिंबल। इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना। ये हमारा हो गया करेंसी क्रिएशन का पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज में जैसे कोई भी करेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रेट ऑफ एक्सचेंज हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं। डॉलर का हम यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज सेट अगर यहाँ पे कर लेते हैं, तो 1 अप्रैल से इसका रेट ऑफ एक्सचेंज इंडिया में कितना यहाँ पे चल रहा है, तो वो हमें यहाँ पे डालना है। जैसे पर डॉलर हमारा 75 रुपीज़ पर डॉलर यहाँ पे अभी का रेट चालू है, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जब हम कोई भी एंट्री पास करेंगे, ट्रांजेक्शन जब हम पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यही रेट उस एंट्री में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे एंट्री करते समय हमें वहाँ पे मैनुअली ये अमाउंट डालनी पड़ती है। एंड सेकंड यहाँ पे सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हम जब भी सेल करेंगे, सेल का अलग, परचेस का अलग, अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करते हैं, तो वो भी हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 75 रुपीज़ पर डॉलर हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया है, एंड इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। डॉलर का मैंने यहाँ पे अभी सेट करके दिखाया आपको। तो डॉलर का जैसे यूएसए का हम यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, जिनका करेंसी डॉलर होगा। यहाँ पे लेजर में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ, इन्फोसिस सॉल्यूशन करके यहाँ पे है। ये हमारा कस्टमर यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमें ऑप्शन देखने को मिलता है करेंसी ऑफ लेजर। ये जो लेजर है, कस्टमर है, इनका करेंसी सिंबल कौन सा है, तो यहाँ पे हम जैसे स्पेस बार देते हैं, तो हम उनका जो करेंसी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डॉलर ले लेते हैं। यहाँ पे बिल बाय बिल का ऑप्शन है, वो हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। एंड कंट्री में हम यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट कर लेते हैं। कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, ओके। एंड इसको सेव कर देते हैं। सो हमारे पार्टी क्रिएट हो गई। रेट ऑफ एक्सचेंज हमने करेंसी बना के रेट ऑफ एक्सचेंज सेट कर दिया। नेक्स्ट हम जब यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन पास करेंगे, हम जैसे 1 अप्रैल को एक सेल ट्रांजेक्शन यहाँ पे बुक कर रहे हैं। 5 नंबर का यहाँ पे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पार्टी में ले रहा हूँ इन्फोसिस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम सेल की एंट्री बुक कर रहे हैं, वैसे हमें इसको बुक कर लेना है। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट कर लेते हैं आइटम 1, सॉरी, सेल्स, मिनट। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, it's visible. यस हाँ। सो वो मास्टर हम यहाँ पे वापस क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इश्यूज के कारण वो सेव नहीं हुआ है। यहाँ पे क्रिएट न्यू,
करेंसी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं डॉलर। ये ऑप्शन हमें यहाँ पे यस कर देना है। सेकंड, यहाँ पे हम फॉरेन की जो भी पार्टी है वहाँ पे पार्टी का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एंड इसका जो करेंसी सिंबल है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेव कर देंगे। एंड जो करेंसी हमने क्रिएट किया है डॉलर वाली, इसका हम रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे सेट कर देंगे। 1 अप्रैल 22 से इनका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है पर डॉलर 75 रुपीज यहाँ पे था। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि वो टाइम बेसिस पे चेंज होते रहता है एक्सचेंज रेट। यहाँ पे वाउचर में जाते हैं हम, यहाँ पे सेल्स वाउचर बुक कर रहे हैं। इन्फोसिस सॉल्यूशन, यहाँ पे सेल्स लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, डेमो आइटम। इसको सेव कर देते हैं। अभी हमें इसका क्वांटिटी डालना है। जैसे यहाँ पे मैं आइटम 1 का 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। 10 क्वांटिटी हम 10 नंबर्स हम इनको इस पार्टी को सेल कर रहे हैं। एंड इसका रेट होगा, जैसे हम यहाँ पे डॉलर में उनको सेल कर रहे हैं, ये फॉरेन कंट्री फॉरेन पार्टी है, तो यहाँ पे हम डॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉलर में इसका रेट है 10 क्वांटिटी का $20, तो इसका अमाउंट भी यहाँ पे डॉलर के हिसाब से ही यहाँ पे सामने आ जाता है। एंड जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो एक यहाँ पे नया यहाँ पे पॉपअप यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने जो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट किया है एक्सचेंज रेट, वो अगर हम डेट चेंज करके कोई ट्रांजेक्शन बुक कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की जो डेट है उस डेट में जो भी इसका एक्सचेंज रेट रहेगा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमने 75 रुपीज डाला था पर डॉलर, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आ गया है। लेकिन अगर ये उस टाइम में चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको अल्टर भी कर सकते हैं इसी एंट्री में। एंड सेम जैसे हम वाउचर रेगुलर बुक करते हैं, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। एंड यहाँ पे हमें 75 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से $200 इसका टोटल अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी में भी हमें इसका टोटल कितना होता है वहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हम इनको सेल करेंगे तो पार्टी से हमें रिसिप्ट भी आएगा उस सेल के अगेंस्ट। तो हम जस्ट एक रिसिप्ट एंट्री बुक कर लेते हैं। ये रिसिप्ट फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को हमने सेल किया था और 1 मई को हमें यहाँ पे उनकी तरफ से रिसिप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट जो भी आ रहा है यहाँ पे डाल लेंगे। मैं यहाँ पे एक बैंक बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट लेजर। जैसे इन्फोसिस सॉल्यूशन ने हमें पेमेंट किया है, तो उनका $2 का यहाँ पे $200 का उनका अमाउंट हुआ था, तो $200 उन्होंने आपको पे किया है। यहाँ पे डॉलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है 200। एंड यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी अभी हम 1 अप्रैल को हमने सेल किया था, 1 मई को हम वो रिसीव कर रहे हैं। तो इस समय ऑब्वियसली इसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे अभी सेल किया तो 75 रुपीज़ था पर डॉलर, अभी फॉर एग्जांपल 1 मई को इसका रेट ऑफ एक्सचेंज 77 हो गया। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसका इंडियन रुपीज़ में वैल्यू हो रहा है 15,400। सेल बिल में इसका इंडियन रुपीज़ में वैल्यू हो रहा था 15,000 टोटल। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें दिखाई देगा 15,400 इसका टोटल वैल्यू इंडियन रुपीज में आ रहा है। इसको सब हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अभी हम जैसे
लेजर हम इसका इन्फोसिस सॉल्यूशन का देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 अप्रैल से हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल किया हमने 15,000 का, हमें रिसीव हुआ है 15,400। हालांकि जो फॉरेन कंट्री है, जो पार्टी है, उनके हिसाब से उन्होंने जो सेल किया, जो पेमेंट हमें भेजा है वो बराबर है, क्योंकि वो डॉलर 200 हुए थे, उन्होंने $200 हमें पे कर दिया। अभी 400 यहाँ पे रुपीज जो है यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस में यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको हमें एडजस्ट करना है। सेल के अगेंस्ट ये जो रिसिप्ट है ये एडजस्ट हो गई। अभी 400 रुपीज जो एक्सीड अमाउंट हो रहा है, जो हमें ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमारा उस समय रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो हमें ये लॉस में भी दिखाएगा। अभी ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको गेन हो या फिर लॉस हो, उसको हमें एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको हम एडजस्ट करने का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अल्टर में आना है, यहाँ पे वाउचर टाइप में आना है, जनरल वाउचर में हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एक क्लास बना लेना है, फॉरेक्स गेन और लॉस। यहाँ पे फॉरेक्स गेन सेकंड क्लास हम बना सकते हैं फॉरेक्स लॉस का, या फिर सेम क्लास में भी गेन एंड लॉस दोनों हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अभी हम गेन का यहाँ पे देख रहे हैं, तो फॉरेक्स गेन का ही यहाँ पे मतलब प्रॉफिट का ही आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसको हमें यस कर लेना है। यहाँ पे एक लेजर हमें क्रिएट करना है फॉरेक्स गेन का। अभी फॉरेक्स गेन ये हमारा इनडायरेक्टली इनकम ही हो रहा है, तो इसका ग्रुप हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ले रहा है, हमारे लिए इनकम ही है। एंड जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन हमने यस किया एंड फॉरेक्स गेन का यहाँ पे लेजर क्रिएट करके सेलेक्ट कर लिया एंड इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना है। अभी हमें एक जनरल एंट्री जो एडजस्टमेंट एंट्री है फॉरेक्स गेन लॉस, वहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे हम बैलेंस शीट में भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें फॉरेक्स गेन लॉस यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, तो उसको हमें जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे वो बैलेंस शीट पे देख सकते हैं उसको। सो हम एडजस्टमेंट का यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। वाउचर्स, यहाँ पे जनरल वाउचर पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने क्लास बनाया था फॉरेक्स गेन का, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। पार्टी सेलेक्ट कर ले, इन्फोसिस सॉल्यूशन। उसका जितना भी फॉरेक्स गेन या फिर लॉस जो भी होगा अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा एंड इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना। अभी अगर हम यहाँ पे लेजर देखेंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, इन्फोसिस सॉल्यूशन का यहाँ पे लेजर देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मैच यहाँ पे हो गया है। 15,000 सेल अमाउंट था, 15,400 अमाउंट जो है एक्सीड अमाउंट हमें यहाँ पे आया था एंड वो हमने फॉरेक्स गेन का जो लेजर है जो हमने इनकम में बनाया था वहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरीके का ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी रहेंगी। एंड अगर हम बैलेंस शीट में भी यहाँ पे देखेंगे तो जो हम यहाँ पे फॉरेक्स गेन लॉस यहाँ पे 400 रुपीज दिख रहा था वो भी अभी यहाँ पे नहीं दिखेंगे। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है जैसे जो हम फॉरेक्स ट्रांजिशन मेंटेन कर सकते हैं टैली में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Priyanka and Aniket, for your presentation. So it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, team. Myself is Bhagwati Zandaria. So today's session is multi-currency in the Tally Prime. तो जैसा कि आप जानते हैं, Tally Prime is a very common product in the India, also in the multiple location in the world. तो जैसा कि आप जानते हैं 80 कंट्री में Tally Prime यूज किया जाता है। सो वहाँ पर मल्टी करेंसी की जरूरत होती है। तो पहली थिंग्स ये है कि जिस कंट्री में जो लोग भी Tally Prime को यूज करते हैं वहाँ पर उनको प्राइमरी बेसिक करेंसी की जरूरत होती है। लाइक इन द यूएस लाइक डॉलर, मल्टीपल कंट्रीज दे आर यूजिंग द डॉलर, दे हैव ए स्पेसिफिक डॉलर लाइक सिंगापुर डॉलर एंड समथिंग लाइक दैट। सेम वे मल्टीपल करेंसी लाइक आपको मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो धर्म इज देयर, तो मल्टीपल करेंसीज आर देयर। सो प्राइमरी कंपनी में आप मल्टीपल करेंसी के हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं कि आज मेरा
प्राइमरी कंपनी इंडिया में है तो मैं उसको INR में बिलिंग करूंगा, और अगर मेरी प्राइमरी कंट्री किसी और लोकेशन है तो मेरा प्राइमरी डेटा आपका काम करेगा प्राइमरी करेंसी के बेस पे अकॉर्डिंग टू द कंट्री। नेक्स्ट हम आते हैं जहां पर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और मल्टीपल कंट्री में करते हैं तो हमें उस कंट्री के बायर के हिसाब से बिलिंग करना होता है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी करेंसी में उसको बिल मिलना चाहिए। तो टैली के अंदर में जैसा कि आज आपने डेमो में देखा, इट्स अ वेरी सिंपल टू डू दिस। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीपल टाइप ऑफ द करेंसी जिस कंट्री में आपको काम करना है उसको क्रिएट करने हैं और बिलिंग के टाइम में आपको चेंज करते चले जाओ। अब रहेगी बात, नेक्स्ट आ जाती है पॉइंट जहां पर हम देखते हैं कि ये करेंसी का प्राइमरी करेंसी का कन्वर्जन रेशियो क्या है, रेट क्या है। क्योंकि करेंसी इज ऑलवेज फ्लोटिंग, रेट हमेशा मार्केट रेट के इंटरनेशनल मार्केट रेट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट सिनेरियो, आज हम उसमें नहीं जाएंगे। तो उसके बेस पे आपको करेंसी का रेट डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल नाउ टुडे करंट एग्जांपल इज डॉलर की रेट 82 पॉइंट समथिंग पैसे है। अब आज की डेट में अगर मुझे डॉलर में बिलिंग करनी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कन्वर्जन रेशियो 82 पॉइंट समथिंग रेट। सेम वे में अगर दूसरी कंट्री में कर रहा हूँ तो उसके बेस पे ही हमें कैलकुलेशन करना है। क्योंकि कस्टमर हमें जो इंटरनेशनल कस्टमर है वो अगर डॉलर में पेमेंट कर रहा है तो वो बिल भी एक्सपेक्ट करेगा डॉलर में। तो आप उसके डॉलर का अमाउंट जो आपके पास आएगा वो INR में कन्वर्ट होके आएगा। उसमें आपका जो भी लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो फॉरेक्स गेन एंड लॉसेस में एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए कहीं से भी आपको जाके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू द योर रेगुलर बिलिंग, रेगुलर परचेज एंड सेल्स और क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आप रिसीट पेमेंट वगैरह कर रहे हैं एज इट इज करेंगे। बस आप मल्टीपल करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ आपको कन्वर्जन रेशियो डालना है। उसके बेस पे आपको फॉरेक्स गेन एंड लॉस आपके प्रॉफिट लॉस में दिखाई देता है, जिसको आपको एक जनरल एंट्री के थ्रू पास करके जब भी आप अपना अकाउंट फाइनलाइजेशन करेंगे उस समय आप एडजस्ट कर सकते हैं, या जब चाहे तब कर सकते हैं। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द मल्टी करेंसी इन द टैली प्राइम, जो बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से डिजाइन किया गया है और बहुत ही इजी गोइंग यूजेबल है, जिसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है और कोई स्पेशल कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर में। आप इंस्टेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विदिन 10-15 मिनट्स। सो दिस इज आइडिया ऑफ द मल्टी करेंसी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट एंड क्वेश्चंस हो गए तो हमारा नंबर ऑलरेडी आपके जूम चैट में है। यू कैन कम्युनिकेट विथ आवर support numbers, and you can also communicate throughout your account manager जो राजलक्ष्मी के साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर भी इधर है, आप यू वांट टू टॉक विद मी, आई एम आल्सो अवेलेबल। इसके अलावा जितने भी सेशन हम कर रहे हैं एज यू नो हम लोग एवरी सैटरडे 4 o'clock वी आर डूइंग द मल्टीपल सेशन एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो आपके डिमांड होते हैं, उसमें ज़्यादा डिमांडेड जो टॉपिक होते हैं उसके बेस में हम जब सेशन एंड ट्रेनिंग करते हैं। तो वो सभी ट्रेनिंग सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं। तो आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे जहाँ पर गुड नंबर्स ऑफ द वीडियोज इज देयर, जहाँ पर हमने टैली प्राइम के हर एक छोटे बड़े सभी फीचर्स को कवर किया है और उसके साथ उसकी थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन साथ में उसका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन सब किया है। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जहाँ पर आप टैली को पूरी तरीके से डेप्थ लर्निंग करना चाहें, आप हर एक छोटे बड़े फीचर्स को लर्न कर सकते हैं। आप अपने टैली को स्मूथ यूज कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप अगर कुछ हमारे पास कोई भी सपोर्ट या कुछ करना लेना चाहें तो हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज इज अवेलेबल फॉर यू। यू कैन कम्युनिकेट विद अस एंड यू कैन टेक द सर्विसेज एंड यू कैन रन योर बिजनेस स्मूथली एंड यू कैन ग्रो इन द डिफरेंट लेवल्स। So this is the idea of our Tally Prime feature, multi-currency, and just I want to update. Every month we are doing something, a special offer for all the prestigious customers. So इस महीने का हमारा जो ऑफर चल रहा है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है, जहाँ पर हम हर एक फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और हेजल फ्री आप सपोर्ट ले सकते हैं हमारी कंपनी के साथ में, और आप अपने
आप अपने फीचर्स को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने टैली के फीचर्स को स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करके और लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद में आप रन कर सकते हैं अपने बिजनेस को स्मूथली, और यू विल गेट द ऑल एडवांटेज ऑफ द रिपोर्ट्स एंड यू कैन मेक अ राइट डिसीजन द राइट टाइम. So you can connect with us and you can take the AMC of us and get the advantage and run the business smoothly. So that's it from my side today, and it's over to you, Yanga. Thank you. Thank you so much, sir. So now soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. So now we'll wind up this session. Thank you, everyone.